ਵਰਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੋਸਟ ਆਪ। I've always liked doing things my own way. Freedom, independence. This is how I live. But I had to earn that. I worked hard for that. I love my freedom. When I ride my bike, I can be free. I absolutely love it. After a hard week working and having meetings, I like to get on my Harley. I don't have to wear a tie. Instead, I wear a t-shirt. Instead of a suit, I wear a leather jacket. My Harley is a big bike. It's heavy, and it's a bit difficult to get through the streets of Monaco. Lots of traffic, crazy streets. It's hard, but it's worth it. For me, the payoff is big. The hills around Monaco where I live are beautiful. I love when I can smell the air and I feel the wind in my hair. This kind of freedom makes me happy. I started my forever business in 1995. That was a long time ago. And Dominic Kip. Now, see, we've been telling you all week. So all week in front of you has been your check. So Greg, will you do me a favor and show him the last number? Because right here, it's got to be the car. Hold on. $1,174,725. Ladies and gentlemen, once again, Rolf Kip has achieved over $1 million in chairman's bonus. That's $1,174,725. I did
did it because I knew I had the ability to earn the freedom that I wanted. I did it for my wife. I did it for my children. I did it for me. I'm very grateful that I chose to invest my time in this business. I think it has made Dominic and our family very happy, very free. I'm Rolf Kipp. I'm independent. I am free. I'm a double diamond, and I am forever. I've always liked doing things my own way. Freedom, independence. This is how I live my life. But I had to earn that. I worked hard for that. I love my freedom. When I ride my bike, I can be free. I absolutely love it. After a hard week working and having meetings, I like to get on my Harley. I don't have to wear a tie. Instead, I wear a t-shirt. Instead of a suit, I wear a leather jacket. My Harley is a big bike. It's heavy, and it's a bit difficult to get through the streets of Monaco. Lots of traffic, crazy streets. It's hard, but it's worth it. For me, the payoff is big. The hills around Monaco where I live are beautiful. I love when I can smell the air and I feel the wind in my hair. This kind of freedom makes me happy. I started my forever business in 1995. That was a long time ago.
हाँ जी सर। हाँ जी, गुड इवनिंग आप सभी को। तो होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहा है ना 6 बजे का, तो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा है। तो बहुत सारी जो न्यू पर्सन थे उसके अंदर तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ जी आप बिजनेस बताएं, है ना। बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो होप सबको बहुत अच्छा बिजनेस वहां से मिला होगा, है ना। तो आज उसके बाद अभी जो हमारी मीटिंग होने वाली है ना, उस उन पर्सन को भी हम लगवा सकते हैं और हमें खुद भी बहुत जरूरी है वो मीटिंग लगानी, है ना। आप सभी को पता है, ग्रुप्स में मैसेज भी डाल रखे हैं। तो आप, है ना, होप आप बहुत एक्साइटेड होंगे उस मीटिंग के लिए। मानवी ब्रेजा मैम की मीटिंग है जो मैम आपको सब कुछ बताएंगे कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और कहाँ तक आज वो पहुंच चुके हैं। तो आप सब इस मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। मैम प्रॉपर आपको बताएंगे कि आपको चैलेंज फेस करने में आ सकते हैं और उनका क्या हमने सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। और जैसे जैसे लाख 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंचे, खुद गाड़ी ली, अपनी टीम में मैनेजर बनाए, सीनियर मैनेजर बने। तो आप सभी रेडी हो उसके लिए। तो मैम हमारे बीच में आ चुके हैं, तो मैं मैम को इनवाइट करता हूं। हाँ जी मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। तो पूरी टीम हमारी एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, आपका एक्सपीरियंस सुनने के लिए कि कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज आप जिस भी मुकाम पे पहुंचे हो। तो बहुत सारे लोगों के ड्रीम है वहां तक पहुंचना, है ना, एक ऐसी लाइफ इंजॉय करना जैसे कि आज आप एक लाइफ अच्छी इंजॉय कर रहे हो। गर्ल्स या बॉयज, है ना, भी बहुत ही आपके जो वर्डिंग है, आपकी मीटिंग सुनने के लिए एक्साइटेड है। तो आप प्लीज स्टार्ट करें। हाँ जी। हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग सभी को। आई होप आपने जो 6 बजे वाला सेशन था उसका काफी ज्यादा फायदा लिया होगा। काफी अच्छा वेबिनार रहा। विशाल सोडी सर और नवनीत सर ने जो हमारा सेशन किया 6 बजे, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे खुद के पर्सन्स भी उसमें काफी बैठे थे और काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ी जो पावर है यहाँ पे हमें पता लगती है, वो है हमारी टीम फायर की पावर। वो यहाँ पे पता लगता है कि यार यंगस्टर्स इतनी कम एज के अंदर क्या कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, और बाहर अगर हम मार्केट में चेक करें तो शायद लोगों के पास 30 साल तक भी एक डायरेक्शन नहीं होती कि हमें लाइफ में करना क्या है। और यहाँ पे एक 22 साल, एक 24 साल के लड़के को पता है कि मुझे लाइफ में 5 साल बाद कहाँ जाना है, मुझे लाइफ में 10 साल बाद कहाँ जाना है। जब नवनीत सर ने लास्ट में एक बात बोली कि ऐसा सोच के देखिए कि मैं 24 साल का लड़का ऐसा भी क्या कर रहा हूँ कि मैंने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली इस बिजनेस से, इस सिस्टम से, तो मेरे भी दिमाग में एक बार ये बात गई कि यार मानवी, सच में फॉरएवर लिविंग कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक 24 साल के लड़के को वहां ले जाके जिंदगी में खड़ा कर दिया जहां पे शायद लोग 54 साल में भी पहुंच नहीं पाते। सो सभी जो सारी यहाँ पे चीज है, जो सारी यहाँ पे गेम है, वो फॉरएवर की, और फॉरएवर के बाद सारी जो गेम है वो है टीम फायर की। क्यों इतनी जल्दी हम लोग ग्रोथ ले पा रहे हैं? हमारा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, राइट। बाकी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैंने एक बार पहले भी, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले भी एक
सेशन किया था, शायद आप लोग में से सभी लोग थे उस सेशन के अंदर। थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम मानवी बरेजा है और मैं बेसिकली पानीपत, हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ। इस फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट किए तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं मुझे। मैं 3.5 साल से बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे बिज़नेस कर रही हूँ और आज के टाइम पे एज़ अ सीनियर मैनेजर एग्ज़िस्ट करती हूँ इस बिज़नेस के अंदर। और काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी हूँ। मेरा जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का रीज़न था, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ थी जी, प्रोडक्ट्स। मुझे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे यहाँ पे। मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे। मैंने स्टार्टिंग में बिज़नेस देखा, जब मेरी अपलाइन मिस्टर मोहित शर्मा सर, थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर वो आज यहाँ ना होते तो शायद मैं भी यहाँ ना होती। तो जब सर ने मुझे इस बिज़नेस से इंट्रोड्यूस किया, मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ते थे वो, तो उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया, मुझे बताया कि मानवी ऐसे-ऐसे बिज़नेस है। मैंने उनको बोला, देख मोहित, मैं ना ऐसे बिज़नेस में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जैसे-जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते गए, मुझे मार्वेलस रिजल्ट्स मिले जी प्रोडक्ट के, जिसकी वज़ह से मेरा फ़ेथ और बढ़ता गया फॉरएवर के ऊपर। तो मुझे अच्छा लगने लगा और धीरे-धीरे जब मुझे ग्रेजुएशन करी, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी बी फार्मेसी के अंदर, सीजीसी लांड्रा कॉलेज, आपने सभी ने मोहाली में सुना होगा। तो मैंने जब उस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो मुझे भी लाइफ़ में कुछ चाहिए था जी, कुछ बड़ा चाहिए था। और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से, काफ़ी अच्छे रैंक से मेरिट होल्डर हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। सब कुछ करने के बावजूद जो मार्केट में मेरे को स्ट्रगल मिली थी, वो जॉब जो मिली थी, वो मिली थी जी मुझे 21-22 हज़ार रुपए की, जिससे मैं कंप्लीटली सैटिस्फाइड नहीं थी। मुझे लगा शायद मैं और डिज़र्व करती हूँ, मैं शायद और ज़िंदगी में कुछ करके आगे बढ़ सकती हूँ। तो कुछ ढूँढ रही थी लाइफ़ में, बट कहते हैं ना, जब आपने कुछ ज़िंदगी में माँगा हो तो भगवान खुद उतर के चाहे आपको वो चीज़ देने आ जाता है। तो मोहित सर के थ्रू मुझे फॉरएवर मिली, भगवान ने भेजी मेरे लिए फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स। आप जब सभी को आज जिनको भी फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं और न्यू है इस बिज़नेस के अंदर, अगर आपको लगता है ना जी कि आपके पास कोई इस बिज़नेस को वैसे ही लेके आ गया है, ऐसे ही कोई नहीं लेके आया जी आपके पास इस बिज़नेस को, आपके पास इस बिज़नेस को खुद उसने भेजा है। सो इसको नो नो करने से पहले, ना करने से पहले एक बार समझ लो, हो सकता है ये ज़िंदगी पलट के रख सकती है। शुरू में फॉरएवर हमें ऐसी लगती है हमारे हाथ की तरह। हमारा हाथ पीछे से ना डार्क कलर का होता है। हमें ना अच्छी नहीं लगती शुरू में फॉरएवर, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम ट्रेनिंग लगाते हैं, ये हाथ सीधा होने लग जाता है। मतलब क्लियर समझ आने लग जाती है, साफ हो जाती है हमारे लिए फॉरएवर। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगाएँगे, जो भी आप सभी न्यू लोग हैं, आप लोग ट्रेनिंग लगाएँगे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि हमें फॉरएवर समझ आ रही है। हमारे सभी क्वेश्चन्स का आंसर मिलता जा रहा है हमें यहाँ पे। तो मैंने भी इसी तरीके से जून 2017 में शुरू किया। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, अच्छा लग रहा था, तो मैंने 15-16 डेज़ के अंदर अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लिया था। बट स्टिल बिज़नेस को लेके श्योर नहीं थी। बिज़नेस को लेकर मैं श्योर हुई जी 10th ऑफ जुलाई, मुझे क्लियर हुआ कि मुझे इस बिज़नेस को करना है और मैंने 11 जुलाई से फुल टाइम इस बिज़नेस को टाइम देना शुरू किया, करना प्रॉपर्ली शुरू किया। 4 महीने के अंदर अपना सुपरवाइज़र लेवल किया, 7 मंथ्स में असिस्टेंट मैनेजर और 8 मंथ्स के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्लियर किया। मेरा रीज़न क्या था यहाँ पे आने का, मैंने आपको बताया हेल्थ, और कहीं न कहीं एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मैं लाइफ़ में ढूँढ रही थी। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ़ के अंदर यहाँ पे आने की वजह क्या हो सकती है। आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आप इस सेशन को क्यों लगा रहे हैं? आप फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स को क्यों देख रहे हो? सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी, एक प्रेज़ेंटेशन शेयर करूँगी, उसके अंदर वीडियो भी होगी जी। कुछ ऑडियोज़, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कुछ स्लाइड्स वगैरह भी होंगी, उन सारी चीज़ों को देखना, समझना कि हाँ यार, शायद आज जो मैं बिज़नेस देख रहा हूँ, छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, कुछ है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ मैं शुरू करूँगी, व्हाट डू यू मैटर्स? व्हाट यू डू मैटर्स। जो आप करते हैं वो मैटर करता है, बट व्हाई यू डू इट मैटर्स मच मोर। लेकिन आप उस चीज को क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। आप क्या कर रहे हैं ये जरूरी है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरीके से आप फॉरएवर कर रहे हैं, जरूरी है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। लेट्स नाउ नो अबाउट द टॉप 5 रीजंस टू स्टार्ट फॉरएवर। आपको मैं 5 टॉप रीजंस आज देने वाली हूँ कि आपको फॉरएवर क्यों शुरू करनी चाहिए, फॉरएवर शुरू करके आपको क्या मिलने वाला है। नंबर 1, काउंट करते रहिएगा। नंबर 1 चीज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कांसेप्ट। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आई थी, मैं सोचती थी यार यहाँ पे तो ये 2cc करना पड़ता है, 2cc तो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ये तो एक प्रॉब्लम है। बिजनेस अपने आप में क्या है जी, बिजनेस अपने आप में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है।
आप सोच के देखिए आज मार्केट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है जी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मार्केट के अंदर लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, लोगों की सेहत गिरती जा रही है। ये सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स इस वक़्त इंडिया के अंदर हम फेस कर रहे हैं। कोई भी बिज़नेस है जी क्यों चलता है? जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि अ, अगर बाहर बारिश हो रही है, आपका मन नहीं है बाहर जाने का और आपके पास मोटरसाइकिल है या एक्टिवा है, लेकिन आपका मन है कि मैं वो फलानी जगह से जाके ना उनकी चाउमीन खा के आऊँ या उसका डोसा खा के आऊँ। तो आप उस वक़्त सोचोगे यार काश कुछ ऐसा हो कि मेरे घर ही खाना आ जाए। ये थॉट किसी के माइंड में आया होगा तकरीबन 4-5 साल पहले और उन्होंने ज़ोमैटो, स्विगी बना दिया। आप सभी जानते हैं ज़ोमैटो, स्विगी को 4-5 साल पहले नहीं एक्ज़िस्ट करता था, 4-5 साल से आया है ज़ोमैटो, स्विगी। ज़ोमैटो, स्विगी के अंदर क्या होता है जी, आप घर बैठे हुए हैं, खाना आपके दरवाज़े पे पहुँच जाएगा, कहीं से भी आपके शहर में। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी, उसका सॉल्यूशन दिया और उस चीज़ से बिज़नेस बनाया सक्सेसफुली। उसी तरीके से जो मैंने बताया आपको मार्केट के अंदर 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ। उन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स दे रही है। The biggest problem right now in the world is continuously decreasing opportunities. कम होती हुई अपॉर्चुनिटी, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और नेचर दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिस वजह से हमें काफी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। फॉरएवर क्या कर रही है जी, दोनों का सोल्यूशन आपके पास लेके आ रही है, सोल्यूशन लेके आ रही है इन दोनों प्रॉब्लम्स का, है ना? सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू गो। जब ये चीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन फॉरएवर दे रही है तो फॉरएवर आगे बढ़ेगी, फॉरएवर के साथ जो लोग जुड़े होंगे वो आगे बढ़ेंगे, है ना? तो इस तरीके से ये चीज आगे ग्रो करती है। दूसरी चीज मैं बात करूं, फ्यूचर बिजनेस, इसको क्यों फ्यूचर बिजनेस बोला गया है? देखिए जी, वी ऑल आर चेंजिंग एंड अपडेटिंग विद टाइम। हम सभी वक्त के साथ बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, क्या आप सभी आज के टाइम पे गूगल पे यूज नहीं करते? क्या सभी आप अमेज़न यूज नहीं करते? दुकान खुद चल के घर आ जाती है जी अमेज़न पे। आपके मोबाइल फ़ोन्स क्या अपडेटेड नहीं है? आप एक बार मोबाइल फ़ोन को अपडेट ना कीजिए, स्विच ऑफ हो जाएगा, अपने आप अपडेट माँगेगा। मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है कि जिसको अपडेट चाहिए ही चाहिए। फैशन ट्रेंड्स की हम बात करें, लेटेस्ट होता है। लेडीज़ या बॉयज़ दुकान पे जाते हैं, वो कोई पुराना डिज़ाइन दिखा दे तो हम कहते हैं, "अरे भैया, ये कौन-सा पुराने ज़माने का आप ट्रेंड दिखा रहे हो? जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड चल रहा है ना, वो दिखाओ।" मतलब हम सभी हर चीज़ अप टू डेटेड रखते हैं, है ना? बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वी शुड शिफ्ट आवर वर्किंग मॉडल्स टू अकॉर्डिंग टू टाइम। वक़्त के साथ हमें काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आप अभी भी पुराने ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको पुराने रिज़ल्ट्स ही मिलेंगे। अगर आप आज भी वो नौकरी पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, सरकारी नौकरी, उसका फ़ॉर्म भर लो, उसका फ़ॉर्म भर लो। अगर आज आप अभी भी उसी चीज़ के भरोसे बैठे हो ना, तो ट्रस्ट मी, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि आप अभी भी ओल्ड ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो। 2021 में दोस्तों, आप 2021 हो चुका है, लेकिन सोच आज भी बाबा आदम के ज़माने की 1900 सदी की है कि मुझे ये पढ़ा जॉब करनी है, ये कागज़, ये फाइलें, इन्हीं चीज़ों में रह जाएँगे हम। आगे कब बढ़ेंगे लाइफ में? आज आगे बढ़ने का टाइम है। 180.5 बिलियन डॉलर की मार्केट क्रिएट कर दी है इस इंडस्ट्री ने। 134 साल पुरानी इंडस्ट्री है ये, 134 इयर्स ओल्ड। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। वक्त के साथ बदलने की जरूरत है हमें। अगर आज भी आपको लगता है ना कि नहीं, ये शायद इंडस्ट्री मेरे लिए ना, तो आंखें खोलिए एक बार, देखिए, शायद हम इसको गलत तरीके से देख रहे हैं, शायद ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हम इसको समझ नहीं पा रहे। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बहुत 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 जरूरी है, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ आवर्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है जी? आप जॉब कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप दुकान में काम करते हैं, आपके पास अपनी दुकान है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप सरकारी जॉब करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप कनाडा में काम करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं। आप क्या करेंगे जी? हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे और 1 दिन में 8 घंटे काम करेंगे। जब 1 दिन के 8 घंटे, 8 इंटू 5 हुए जी, 5 दिन के 40 घंटे आपने 1 हफ्ते में काम किया। जब आप 1 साल के अंदर 52 हफ्तों में काम करेंगे, तो तकरीबन 2080 घंटे आपने 1 साल के अंदर काम किया। और यही काम जब 45 साल तक करोगे, तो तकरीबन 93,600 घंटे आपने पूरी उम्र काम किया जी, 93,600 आवर्स। लेकिन मैं दूसरी तरफ बात करूँ, लिवरेज्ड इनकम, लिवरेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। वक़्त को कैसे बढ़ा सकते हो? हर किसी के पास तो 24 घंटे हैं। वक़्त को किस तरीके से बढ़ा सकते हो? अब इसको ध्यान से सुनना। आपने इस बिज़नेस को 5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। आप अब लोग कितने हो गए टोटल बिज़नेस के अंदर? 6 लोग हो गए, 1 आप और 5 जिनको इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने 5 लोगों ने आगे 5-5 को और इंट्रोड्यूस किया।
तो अब हो गए आगे 25 लोग, 6 आप लोग हो और 25 लोग हो, 6 और 5 कितने हुए जी? 6 और 5 कितने हुए जी? 31 लोग। अभी आपको चलो मैं निकाल देती हूँ, टोटल हुए 30 लोग, ठीक है? 30 लोग आपकी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। अगर वो 25 लोगों ने भी आगे 5-5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो टोटल हो गए जी 125 लोग। 125 लोग और पीछे 30 लोग, 155 लोग आपकी टीम के अंदर हो गए। अगर रोज का सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं और हफ्ते में 5 दिन भी काम करते हैं, एक इंसान सिर्फ 10 घंटे काम करे हफ्ते में सोचिए, 2 घंटे दिन के अगर काम नहीं कर सकता एक इंसान पार्ट टाइम के अंदर, हफ्ते के 10 घंटे काम करेगा एक इंसान। और जब 155 लोग काम करेंगे तो एक हफ्ते के हुए जी 1550 घंटे। एक साल के अंदर हुए आपके 80,600 घंटे। आपको क्या लग रहा है इस नंबर को आप सारी उम्र के साथ बीट कर सकते हो? सारी उम्र 93,000 घंटे काम किया था और यहाँ पे एक साल के अंदर 80,600 घंटे काम कर लिया। और किया क्या? सबने सिर्फ 2-2 घंटे काम किया। लेकिन कई आपकी टीम में ऐसे भी होंगे जो 6 घंटे भी काम करते होंगे। कई आप में से ऐसे भी होंगे जो 8 घंटे भी काम करते होंगे फॉरएवर में। तो सोचिए ये घंटे कहाँ तक पहुंच सकते हैं एक साल के अंदर, 1 महीने में, 1 हफ्ते में। ये बात की मैं आपको कर रही थी, ये आपको चीज़ कहीं पे और नहीं मिलेगी दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। दुनिया में हर चीज़ नेटवर्क है। आप एक साबुन लेते हैं, एक सुई लेते हैं घर में, एक पर्दा लेते हैं, एक बेडशीट लेके आते हैं, फ्रिज लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, सिम कार्ड लेकर आते हैं, चार्जर लेके आते हैं, हर चीज़ नेटवर्क का पार्ट है। बस उस नेटवर्क का आपको पैसा नहीं आ रहा। कोई और पैसा कमा रहा है उस नेटवर्क से, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर उस नेटवर्क का आप ही पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ा थर्ड रीजन है जो मैं आपको बता रही थी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ आवर्स। चौथा मैं आपको बताऊंगी, अपना क्वाड्रेंट बहुत वाइजली चूज कीजिए। आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं लाइफ के अंदर, ठीक है? इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, 4 तरीके से काम कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहली चीज, आप एक्टिवली काम कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप एम्प्लॉय बन सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, राइट? आप क्या करते हैं? यू एक्सचेंज योर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर एन इनकम। आप अपना टाइम और एफर्ट देते हो और आपको उसकी सैलरी मिल जाती है। यू डोंट वर्क, अगर यू डोंट गेट पेड। अगर आप काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं आएगा। यू डोंट वर्क, यू डोंट गेट पेड, है ना? तो जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन की सैलरी कट गई। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, यार बॉस से छुट्टी नहीं मिलेगी, यार अगर ऐसे किया ना तो मेरी सैलरी कट जाएगी। आपने अक्सर सुनी होगी ये चीजें अपने दोस्तों को कहते हुए। तो वो उसका मतलब क्या है कि जिस दिन वो काम नहीं करते उस दिन उनको पैसा नहीं आता। दूसरा क्वाड्रेंट में बात करूं, सेल्फ एम्प्लॉयड, you work for yourself, but can you take a 6 week holiday and your business keeps on going without you? यहाँ पे बेशक आप अपने लिए काम करते हैं, बट है तो ये भी जॉब ही की तरह। आपको 10 घंटे 12 घंटे यहाँ पे भी देने पड़ रहे हैं। आप एक सिंपल सी चीज बताइए, अगर यहाँ पे मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग होते हैं जिनकी कोई दुकान होती है, वो एडवोकेट होते हैं या वो डॉक्टर्स होते हैं, उनका क्लिनिक होते हैं, ये सभी लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। क्या ये लोग अपने काम से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हैं और एक्सपेक्ट करेंगे कि पीछे इनका बिजनेस इनके बिना चल सके? ऑब्वियसली नॉट। जिस दिन दुकान का शटर खुलेगा उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन दुकान का शटर नहीं खुलेगा दुकान में पैसा नहीं आएगा। इस चीज को कहा जाता है जी एक्टिव इनकम। ई और एस क्वाड्रेंट मतलब जब तक आप काम पे जाएंगे तब तक आपको काम का पैसा आएगा। तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जहां पे आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगा। आप इन 2 क्वाड्रेंट्स के लिए पैसों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इस थर्ड कैटेगरी के अंदर पैसा आपके लिए काम करता है, मनी वर्किंग फॉर यू। वो कैसे हो सकता है? बी मतलब बिजनेस ओनर, बिग बिजनेस, छोटा बिजनेस नहीं, एक बिग लेवल का बिजनेस। ये वो लोग हैं जिनकी टीम के अंदर दीज पीपल हैव पीपल वर्किंग हार्ड फॉर देम टू जनरेट देम एन इनकम। यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी एमएनसी ओपन कर देते हैं और उस एमएनसी के अंदर लोग लगातार आपके मेरे जैसे नौकरियां करते हैं और इन लोगों को पैसा क्रिएट करके देते हैं। बिजनेस ओनर लोग होते हैं ये। रिलायंस, टाटा, ये सारे बिजनेस ओनर हैं। ये ब्रिटानिया का मालिक, ये सभी के सभी बिजनेस ओनर हैं। आपके मेरे जैसे लोग यही काम करते हैं, इन्हीं कंपनीज में काम करते हैं,
टाटा की बात करूँ मैं, चाहे मैं विप्रो की बात करूँ, मैं सन फार्मा की बात करूँ, मैं लुपिन की बात करूँ, मैं एयरटेल की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करिए बड़ी इंडस्ट्री की, वो एक बिग बिज़नेस है, वो एक बिज़नेस ओनर मॉडल में आता है वो इंसान। वहाँ पे वो इंसान लोगों के घंटे मल्टीप्लाई करके काम करता है, लेकिन यहाँ पे आप बॉस नहीं बन रहे जी किसी के, आप मालिक नहीं हो, आप लोगों को नौकरी नहीं दे रहे। यहाँ पे यू कैन स्टार्ट बिजनेस अपना खुद का बाय बीइंग अ बिजनेस ओनर, कोई बॉस बन के नहीं लेकिन एक बिजनेस ओनर बन के। आपके नेटवर्क के अंदर जितने लोग आते हैं वो सभी एक बिजनेस ओनर होते हैं, ना कि आपके एम्प्लॉय होते हैं, है ना? और चौथा जो क्वाड्रेंट है दैट इज इन्वेस्टर, दे आर द पीपल दैट हैव मनी वर्किंग हार्ड फॉर देम। यहाँ पे पैसा इन लोगों के लिए काम करता है, इन लोगों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ये लोग खेलने भी जाएं तो भी इनको पैसा आएगा। ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है, हर किसी का दिल करेगा यार जिंदगी हो तो इन बी और आई क्वाड्रेंट वाले लोगों जैसी हो। पर दोस्तों बी और आई क्वाड्रेंट में आना इतना आसान नहीं है। क्या आपके पास है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लगाने को बिजनेस में? ऑब्वियसली नॉट। अगर होता तो हम आज यहाँ ना बैठे होते। हम आज यहाँ पे बैठे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है बट टाइम है। इन्वेस्टर तो मैं नहीं बता सकती अभी आपको स्टार्टिंग में कैसा बना जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आके बी क्वाड्रेंट से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। एक बिजनेस ओनर डेफिनेटली आप यहाँ पे बन सकते हो, राइट? आगे मैं बात करूं, एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। Education is a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. Value, believing, independent thinking, teamwork, care for others. These are the soft part. क्या बताया जी इन्होंने? वो सारी चीजें जो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सिखाई जाती है। देखो मैं तो नहीं जानती जैक मा को, या जैक मा ये इंसान एशिया का आफ्टर अंबानी रिचेस्ट पर्सन है, चाइना का सबसे अमीर इंसान है ये जैक मा। अली बाबा की इसने खोज करी है, बहुत बड़ी ब्रांड है अली बाबा। चाइना का सबसे अमीर इंसान है और एशिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है ये इंसान जैक मा। ये तो नहीं फॉरएवर को जानता, लेकिन इसने क्या चीज बोली जी? टीम वर्क, केयर फॉर अदर्स, वैल्यूज, एनकरेजमेंट, ये सारी चीजें क्या आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सिखाई नहीं जा रही? मैंने बोला था आपका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इन्होंने बताया 800 मिलियन जॉब्स 2030 तक लूज हो जाएंगी। 2020 में हो गई ना जी करोड़ों जॉब्स लूज। इनको थोड़ी पता था 5-7 साल पहले की है ये वीडियो। उस वक्त इनको तो नहीं पता होगा कि कोरोना ने आना है या क्या होना है, बट डेफिनेटली इनको ये जरूर पता था कि बहुत ज्यादा मशीन्स आ जाएंगी और मशीन्स इंसान की जगह ले लेंगी। और जब मशीन्स इंसान की जगह ले लेंगी तो इंसान का काम खत्म होने लग जाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला कि 800 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएगी 2030 तक। दोस्तों अभी भी 10 साल पड़े, अपनी जिंदगी बचा लीजिए, इस बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए, टीम वर्क के साथ फॉरएवर शुरू कर लेंगे तो 10 साल बाद बहुत आगे चले जाएंगे। आज भी अगर नौकरी के भरोसे बैठे रहे ना, तो जो नौकरी आज नहीं जा रही ना तो 2030 में चली जाएगी। आप 23 के हो, 33 की उम्र में पैसों से हाथ धोना पड़ जाएगा। आज ही संभल जाइए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना? उसके बाद मैं बात करूं फिफ्थ रीजन, बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आपको इस बिजनेस में आना चाहिए, फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज माइंडसेट। माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है जी लोगों का। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? फ्रीडम। लोग आजादी चाहते हैं, लोग पैसा चाहते हैं, अपना बिजनेस चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं, लाइफस्टाइल चाहते हैं, बेटर हेल्थ चाहते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ज्यादा क्वालिटी टाइम चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और सिक्योरिटी चाहते हैं। ये सारी चीजें आज के टाइम पे इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। उसको बिजनेस में फ्रीडम चाहिए,
उसको बेटर हेल्थ चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, फ्रीडम, टाइम चाहिए, एंजॉय चाहिए। आज के टाइम पे लोगों की ज़रूरतें बदलती जा रही हैं जी। माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं हम? आप इधर एक बार ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर के अंदर। जॉब वर्सेस ट्रेडिशनल बिज़नेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। मैं एक जगह एक जॉब को कंपेयर करूँगी, एक ट्रेडिशनल बिज़नेस को कंपेयर करूँगी और तीसरी तरफ एक नेटवर्क मार्केटिंग को कंपेयर करूँगी। सबसे ऊपर है जी आप। लाइफ के अंदर अगर आप एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी चूज करते हैं कि नहीं नहीं मेरी जॉब ना जाए, जॉब ना जाए, सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी अगर आप चूज करते हैं या आप लॉन्ग टर्म फ्रीडम चूज करते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी चूज करते हैं तो आप अपनी जॉब पे लगे रहिए, अपनी ईयरली बोनस और इंक्रीमेंट एंजॉय करिए और 9 to 5 जॉब करिए जब तक आपकी उम्र 95 नहीं हो जाती, है ना। नहीं तो दूसरी तरफ अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, है ना, फ्रीडम चाहते हैं तो क्या करना होगा? स्टार्ट योर ओन बिजनेस, पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि एक फ्रेंचाइजी खरीद लो, चला चलाया बिजनेस खरीद लो। तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग चूज कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ स्टार्ट कर लो। अच्छा, अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे कोई भी बड़े लेवल का, छोटे लेवल का, तो पहले क्या चाहिए? पैसा, रेज कैपिटल। फ्रेंचाइजी बाय करोगे तो भी पैसा चाहिए, रेज कैपिटल। दोनों केसेस में पहले पैसा चाहिए। जब कैपिटल बनाओगे तो फिर एक सिस्टम भी बनाओगे, दुकान खोलोगे, शोरूम खोलोगे, है ना, अंदर सामान लगाओगे, पैसा लाओगे, प्रोडक्ट लाओगे, बिल्ड योर ओन सिस्टम, अपना सिस्टम बनाओगे। सिस्टम बनाने के बाद क्या करोगे? अपनी टीम बनाओगे, क्योंकि लोग नहीं काम करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। टीम बनाने के बाद क्या करोगे? इन्वेस्ट विद योर लिवरेज इनकम। इनकम को लिवरेज करने के लिए अपनी टीम के साथ आप क्या करोगे? पैसा और इन्वेस्ट करोगे उस बिजनेस के अंदर, और फिर जाके आप कर सकते हो कि हाँ, आपको रिटायर रिच, मतलब आपको पैसा आ सकता है, यंग एंड रिच आप रिटायर कर सकते हो। लेकिन इतने लंबे रूट की जगह अगर हम सीधा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो वहां पे बस आपने क्या करना है? डायरेक्टली आपको अपना एक टीम बिल्ड करनी है और फिर टाइम को लिवरेज कीजिए और रिटायर हो जाइए। सिंपल है ना। सिस्टम इजी है लेकिन लोगों को समझ नहीं आता इस चीज के बारे में, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है एवरीथिंग स्टार्ट ऑफ विद अ चॉइस। सिक्योरिटी और फ्रीडम एक चॉइस है जी, आप किस चीज के साथ शुरू करना चाहते हैं। अगर आप एक राइट चॉइस अपनी लाइफ के अंदर करेंगे तो आप भी यंग और रिच रिटायर हो सकते हो। ठीक है, ये दूसरी वीडियो एक बार आपको दिखाती हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक मशहूर समोसे की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के मुलाजमीन वहां आकर समोसे खाया करते थे। एक दिन कंपनी का एक मैनेजर समोसे खाते खाते समोसे वाले से मजाक के मूड में आ गया। मैनेजर ने समोसे वाले से कहा, यार तुम्हारी दुकान तुमने बहुत अच्छी तरह सेट की है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना वक्त और टैलेंट समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहाँ होते? हो सकता है शायद तुम भी आज मैनेजर होते। इस बात पर समोसे वाले ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, सर मेरा ये काम आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे फरोख्त करता था तभी आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीने के 1000 रुपए कमाता था और आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए थी। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की। आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस मशहूर दुकान तक पहुंच गया। आज आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं और मैं महीने के 2 लाख रुपए। लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से अपने काम को आपके काम से बेहतर नहीं कह रहा, बल्कि ये तो मैं बच्चों की वजह से कह रहा हूँ। जरा सोचिए सर, मैं तो बहुत कम रुपयों से कारोबार शुरू किया था, मगर मेरे बेटे को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का फायदा आपके मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आप अपने बेटे को डायरेक्ट अपनी पोस्ट पर तो नहीं बिठा सकते ना, उसे भी आप ही तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहाँ से आगे ले जाएगा और अपने दौर में हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। अब आप ही बताएं, मेरा वक्त और टैलेंट कैसे बर्बाद हो रहा है। मैनेजर साहब ने समोसे वाले को 2 समोसों के 20 रुपए दिए और बगैर कुछ बोले वहां से खिसक लिए। बहरहाल अपना कारोबार किसी की मुलाजमत से 1000 गुना बेहतर होता है। आज के दौर में लोग अपने बच्चों को तालीम सिर्फ इसलिए दिलाते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल सके, जो कि दुरुस्त फैसला नहीं। नौकरी नहीं, कारोबार तलाश करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है ना।
शायद इस वीडियो से आपके दिमाग खुल गया होगा थोड़ा-सा। आज के टाइम पे हमें सिर्फ़ एक नौकरी दिलाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नौकरी दिलाने के लिए पढ़ाई ना कराएँ जी, नौकरी दिलाने लेने के लिए आप लोग पढ़ाई ना करें। पढ़ाई करें तो ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए। आज के सेशन में भी नवी सर ने बोला कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ द पर्पज़? पर्पज़ है जी पैसा, ज़िंदगी में पैसा कमाना है, लाइफ़ सेट करनी है। लाइफ़ सेट करने के लिए आपको राइट डायरेक्शन तो चूज़ करनी ही पड़ेगी। राइट। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे हम एग्जैक्टली करते क्या, व्हाट डू यू एक्चुअली डू हेयर। हम यहाँ पे अगर आपके माइंड में आ रहा है कि यार हमें यहाँ पे काम एग्जैक्टली करना क्या होता है, चलो ठीक है, मुझे समझ आ गया 5 रीजंस कि मुझे ठीक है फॉरएवर इसलिए शुरू करनी चाहिए। अगर आपको आगे अब जानना है कि करना क्या होता है यहाँ पे, तो अब आप ये 5 चीजें ध्यान से सुनिए कि आपको यहाँ पे 5 नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ क्या करना होता है आपको। सबसे पहली चीज, चूज अ कंपनी केयरफुली। एक बहुत अच्छी कंपनी केयरफुली चूज करें जहां पे आप अपना फ्यूचर, अपनी ग्रोथ देख सकते हैं। दूसरी चीज, डेडिकेट टाइम टू योर टीम वाइजली। अपनी टीम को टाइम दे, डेडिकेटेडली उनको सिखाएं। स्पेंड टाइम डूइंग ओनली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हुए वक्त गुजारे। रीडिंग करें, ट्रेनिंग लगाएं, है ना, इनविटेशन कॉल्स करें, फॉलो अप ले, न्यू लोगों को इस बिजनेस के अंदर किस तरीके से लाना उस चीज के बारे में देखें। इंटरनेट को राइट तरीके से कैसे यूज करना है वो देखें। सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखें। चौथी चीज, लिवरेज द इंटरेस्ट टू बिल्ड योर बिजनेस। आप अपने वक्त को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेके आए, ज्वाइन कराएं। जितना ज्यादा अच्छा नेटवर्क होगा, जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा, उतना बड़ा ही आपका बिजनेस होगा। ठीक है। और पांचवी चीज, कोच करें एंड ट्रेन करें एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जितने ज्यादा लोगों को यहाँ पे काम सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को यहाँ पे स्किल्ड बना सकते हैं, उतना ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा है। ठीक है जी। सो ये टॉप 5 रीजंस बताए मैंने आपको आज नेटवर्क मार्केटिंग को करने के। सबसे पहला था जी, दोबारा से स्टार्ट करूंगी एक बार याद कराने के लिए आपको। सबसे पहला था जी, प्रॉब्लम सोल्यूशन कंसेप्ट। प्रॉब्लम और सोल्यूशन वाला कंसेप्ट समझिए कि बिजनेसेस कैसे रन करते हैं। मैंने सेकंड बताया फ्यूचर बिजनेस, आने वाले वक्त का ये फ्यूचर बिजनेस बनने वाला है। तीसरा मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन ऑफ आवर्स, किस तरीके से आप अपने घंटों को लाइफ के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चौथा हमने डिस्कस किया क्वाड्रेंट्स के बारे में। आप अपना क्वाड्रेंट चूज कीजिए, आप सीधा ही फॉरएवर के अंदर आके बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट से शुरू कर सकते हैं, है ना। पांचवा मैंने आपको बताया माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट शिफ्ट कर रहा है। लोग आज के टाइम पे सोचते हैं यंग रिटायर करें, रिच रिटायर करें, और उस चीज को अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे फास्टेस्ट रूट जो आपकी लाइफ में है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये चीज मुझे तो समझ आ गई, बट शायद आपको अभी समझ नहीं आई। तो मैं एंड अप करती हूँ यहाँ पे आपको एक चीज बताते हुए कि whenever you see a successful business, जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को देखते हैं ना, आप लोग अपने सीनियर्स को देखते होंगे, वरिंदर सर को, सुरेंद्र सर को, नगिंदर सर को, जो भी आपके सीनियर है ना, चंद्रप्रीत सर को, आप लोग इनको देखते होंगे, आप सोचते होंगे यार इनका कितना सक्सेसफुल बिजनेस है। whenever you see a successful business, याद रखना someone once made a courageous decision। किसी ने एक बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया होगा, तभी वो आज इतना सक्सेसफुल बिजनेस है। आज आप जो डिसीजन लोगे वही आने वाले टाइम में आपके बिजनेस को सक्सेसफुल या फिर शायद बिजनेस ही ना हो, वो डिसाइड करेगा कि आज आपका डिसीजन क्या है। क्योंकि ईच डे यू हैव टू मेक अ डिसीजन, हर रोज डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। विल यू गिव अप? क्या आप गिव अप करेंगे? क्या गिव इन करेंगे? ट्राई करके देखते हैं। या गिव इट योर ऑल? क्या सारा कुछ लगा देंगे इस बिजनेस के अंदर अपना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी, आप किस तरीके से इस बिजनेस को देखते हैं। राइट। सो इतना मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन के लिए था। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने ग्रोथ कैसे ली, मैंने क्या कुछ किया। देखिए काफी गर्ल्स भी आप आज इस सेशन को लगा रही होंगी, आई नो काफी गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, और आपके माइंड में भी आया होगा कि मैम आपने इस बिजनेस को कैसे किया, आपने इस 2cc को कैसे किया, टीम कैसे बनाई, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन भी नहीं हो रहा। तो देखिए शुरू के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी नॉलेज। आपको एएस करना है, आपको नॉलेज की जरूरत है। आपको टीम बनानी है, आपको नॉलेज की जरूरत है। आपको लेवल्स क्लियर करने, आपको नॉलेज की जरूरत है। अगर आपकी नॉलेज अप टू द मार्क नहीं है, आप सोच के देखिए आपको एएस लेवल यहाँ पे मिल रहा है और आपकी नॉलेज इतनी है, आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। आपको अगर यहाँ तक पहुंचना है तो आपको इस लेवल की नॉलेज लेके आनी पड़ेगी। वो नॉलेज आपको ट्रेनिंग से मिल सकती है,
वो नॉलेज आपको पर्सनली बुक्स रीड करके मिल सकती है, वो नॉलेज आपको पर्सनली आप बुक्स रीड करके या फिर अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट में आके या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में जितना उनको यूज करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग सकता है आपको। बट ये चीज याद रखिए, ऐसा नहीं होगा कि जी आप बिना नॉलेज के लाइफ में आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको टीम बनानी है, आपको सवाल ही जवाब है, आग ही आग, द सीक्रेट बुक्स और 21वीं सदी का कारोबार, लोक विहार, ये बुक्स पढ़नी पड़ेगी। बॉडी लैंग्वेज, ये सभी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मिरेकल मॉर्निंग जिसके अंदर 5 टॉप हैबिट्स, 5 गुड हैबिट्स ऑफ 6 गुड हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के बारे में बताया हुआ है। ये सभी बुक्स आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप नॉलेज लेंगे तभी आपकी टीम बनेगी। आपको प्रिंसिपल ट्रेनिंग आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग प्लान अच्छे से पता होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, किसी को ट्रेनिंग कैसे देनी है ये पता होना चाहिए। जब तक आपको इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ग्रो करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। हमारे ना लेवल्स होंगे, ना हमारी टीम बनेगी। मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं सोशल मीडिया पे, मैम आपके लिए बड़ा ईज़ी रहा होगा। अरे आप कभी हमारे शूज़ में आके देखो, हमारे लिए भी चीज़ें मुश्किल थी। हमने ऑफलाइन टाइम के अंदर भी ग्रोथ ली है, बट कैसे ग्रोथ ली है? हम नॉलेज पे स्टिक रहते थे। हम ट्रेनिंग रोज़ लगाते थे। कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, आज मेरा पर्सन नहीं है, आज मैं ट्रेनिंग नहीं लगाऊँगा। हम लोग ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। हम जब अपने टाइम पे एएस थे, हम कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ते थे। मैंने अपने सीनियर मैनेजर तक रोज ट्रेनिंग लगाई है। एवरी डे मीन्स एवरी डे। मैं आज भी रोज ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा लेवल ऊपर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये लेवल और ये नॉलेज है। अगर मैं नॉलेज ऊपर करती जा रही हूँ तो डेफिनेटली लेवल भी ऊपर होता जाएगा। लेकिन अगर मेरी नॉलेज कम है और मैं लेवल के लिए भाग रही हूँ तो फायदा नहीं है जी। नॉलेज लेवल के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। अगर नॉलेज आपको है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी नॉलेज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आपको सक्सेस दिलाती है। अगर आपको नॉलेज है लेकिन आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नॉलेज होने से ही आपका काम चल पड़ेगा, वो कभी नहीं होगा। आपको नॉलेज के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये तो वेरी ऑब्वियस है। ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइनिंग आपका सीनियर करा ले और लेवल आपका हो जाए, सीसी आपके डल जाए, है ना? ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ पाना है तो आपको खुद उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, आपको खुद उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, मुझे भी चैलेंजेस आए थे, सेम ऐसे ही चैलेंज आए थे। और मेरी भी कोई गर्ल अपलाइन तो कभी नहीं थी, मेरी तो ऊपर मनदीप कंबोज तक कोई भी लड़की अपलाइन नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि एक लड़की लड़की को गाइड कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़का आपकी अपलाइन भी आपको गाइड कर सकती है, आप समझने वाले बनिए। कभी कभी हम लड़कियां होती हैं, हम सोचती हैं नहीं कि यार मेरी लड़की अपलाइन होती तो ये अच्छा होता। तो ऐसा कुछ नहीं है जी। अपलाइन ने तो वही बताना है, जो काम करना है वो तो अपलाइन ही बताएगी ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे मैटर नहीं करता। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा एक्सपीरियंस हेल्प कर जाता है, लेकिन आज के टाइम पे मुझे लगता है एक्सपीरियंस सभी का सेम ही होता है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है। सो मैंने भी अपनी बॉय अपलाइन थी, मेरी भी सारी अपलाइंस बॉय हैं। मोहित सर, विशाल सोडी सर, नवनीत सर, ओंकार सर, गुरिंदर सर, जस्सी सर, औजला सर, गौरव सर, जसप्रीत सर, मेरी भी सारी अपलाइन बॉयज हैं। और मुझे कुछ इतना वो नहीं होता कि हाँ कुछ बहुत बड़ी चीज थी या कुछ ऐसा था। मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मुझे बहुत काम आया है, और मैंने उनकी बातों को फॉलो किया। सीनियर आपको कितनी बातें बता रहा है, देखिए सीनियर तो आपको 1000 बातें बताएगा, क्या आप 1000 बातों को फॉलो करेंगे? फॉलो तो आप 10 बातों को भी नहीं करोगे। तो पहले फॉलो जो बात बता रहा है सीनियर उसको कर लीजिए, रादर देन ये पूछना कि ये बता दो जी, ये बता दो, ये भी बता दो, वो भी बता दो। ज़्यादा बातें पूछने की जगह आप 10 बातों पे भी इम्प्लीमेंट कर लेना, तो भी आप सुपरवाइज़र मैनेजर बन जाएँगे, राइट? सो हमेशा माइंड के अंदर ये चीज़ रखें कि अगर मैं मैनेजर बनूँगा तो अपनी वजह से बनूँगा, नहीं बनूँगा तो भी अपनी वजह से बनूँगा। मेरी मेरी अपलाइन या मेरी डाउनलाइन का कोई रोल नहीं है। ये मेरी जर्नी है, ये मेरी कामयाबी है और मुझे ही इसको पाना होगा, और इसको पाने के लिए मुझे ही एफर्ट्स करने होंगे, मुझे ही मेहनत करनी होगी। मेरे अलावा कोई और मेहनत नहीं कर सकता। सो अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पे ग्रोथ लेना इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि मैंने आपको टॉप 5 रीज़न्स आज बता दिए। अगर आप भी यहाँ पे ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो आपको लर्न करना पड़ेगा,
लर्न करके जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और आप भी आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक अनलिमिटेड फ्यूचर है जी, अनलिमिटेड फ्यूचर, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड फ्यूचर है यहाँ पे। जितना मर्जी ग्रो कर लीजिए, यहाँ पे किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कोई सीट्स की वैकेंसी नहीं है कि इतनी वैकेंसी और इतनी भर्तियां हो सकती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जितना चाहे जो चाहे ग्रो कर सकता है, बस एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून चाहिए, एक काम करने की इच्छा और एक्साइटमेंट होनी चाहिए अंदर से, राइट। सो सभी के लिए मेरी तरफ से आज इतना ही। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, अच्छा लगा होगा मुझसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सभी को चीजों के बारे में बता के, जो मैंने काफी चीजें वीडियोस दिखाई उनको माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा, जो ट्रेनिंग दी है इसको याद रखिएगा, और आने वाली अपनी फ्यूचर टीम्स को भी ये ट्रेनिंग जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी ये सारी बातें जो मैंने आपको आज दी है वो सारी बातें आपकी टीम्स तक भी आगे पहुंच जाए, राइट। सो हैप्पी रहें, खुश रह के काम करें, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि फॉरएवर सबके लिए बनी है, बट हर कोई फॉरएवर के लिए नहीं बना। सबके पास फॉरएवर आ जाती है, बट सब कामयाब क्यों नहीं होते फॉरएवर के अंदर? बिकॉज द फॉरएवर इज फॉर एवरीवन, बट नॉट एवरीवन इज फॉर फॉरएवर। मतलब सभी फॉरएवर के लिए नहीं बने, बट फॉरएवर सबके लिए बनी है। इस बात का बहुत बड़ा मतलब है, अगर आप समझ गए तो शायद आप काफी कुछ समझ जाएंगे आज, है ना। तो मेरी तरफ से इतना ही आज के सेशन के लिए। ऑल द बेस्ट सभी को। टेक केयर एवरीवन। आई होप आप और आपकी फैमिलीज सेफ एंड हैप्पी रहे।